Shalom everyone. सबके लिए शांति हो। Welcome to Rise of the Joshua Generation. यहोशू पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And I believe God is blessing you tremendously these days. आशा करता हूं इन दिनों में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे रहे हैं। Arise and shine because your light has come. जागो और प्रकाशित हो क्योंकि आपके लिए ज्योति आ चुका है। Isn't it wonderful that God's light will shine upon us? क्या यह अद्भुत बात नहीं है जब परमेश्वर की ज्योति आप में चमकेगा? When the land is in darkness, जब ये जमीन अंधेरे में पड़ा हुआ है, when the whole Egypt was in darkness, जब संपूर्ण मिस्र अंधकार में था, there was this small piece of land called Goshen. वहां पे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसका नाम गोशेम कहता है। Light shined on Goshen for the 3 days. वो 3 दिन तक रोशनी उनके ऊपर चमकता रहा। There was no darkness. वहां कोई अंधकार नहीं थी। You and I are called to live in Goshen. हम और आप बुलाए गए उस गोशेम में रहने के लिए। There is darkness all over. चारों तरफ में अंधकार घेरा हुआ है। And when you live in the light, जब आप ज्योति में जिएंगे, nations will come to the brightness of your dawning. और आपके उस उदय की रोशनी से लोग, राष्ट्र के लोग आपके पास आएंगे। Previously, we were learning about the life of Joseph. पहले हम यूसुफ की जिंदगी के विषय में पढ़ते आ रहे थे। And I believe that you are finding some revelations that you can take with you. मैं आशा करता हूं आप जो है कुछ प्रकाशन को पाएं ताकि अपने साथ में ले जाने पाएं। Because this will be a similar journey that the end time army has to go through. क्योंकि इन अंतिम दिनों के सेनाओं के लिए वैसा ही वो सफर रहेगा। It may not be physical affliction, हो सकता है वो शारीरिक जो है दुख नहीं हो सकता है, like a disease, बीमारी के समान, but you may have to go through torture. मगर आप सताओं में से होके जाना पड़े। You may have to go through prison. आपको कैद खाने में जाना पड़ जाए। You will be beheaded. आपका सर काटा जाएगा। You will be tortured mentally. मानसिक रीति से सताए जाएंगे। You will be isolated. अकेले किए जाएंगे। So all these kind of tribulations are coming. इस प्रकार के सताव आपके लिए आ रहा है। How are we going to cope with it? इन सब के साथ हम कैसे सहने पाएंगे? Just like God visited Job, जिस रीति से परमेश्वर ने अय्यूब से मुलाकात किए, Jesus is going to strengthen his people. यीशु मसीह अपने लोगों को बलवंत करने वाले हैं। Jesus is going to visit us. यीशु हमसे मुलाकात करने वाले हैं And he will make you strong. और वो आपको बलवंत करेंगे। There is strength in his presence. उसकी उपस्थिति में ताकत है। There is power in his anointing. उनके अभिषेक में सामर्थ है। He will come near you. आपके निकट वो आएंगे। And you will be as bold as lions. तब आप सिंह के समान साहसी बन जाएंगे। We were learning about Genesis chapter 41 verses 51 and 52. हम उत्पत्ति 40 अध्याय के 51 और 52वें पद को हम अध्ययन कर रहे थे। The first son was Manasseh. पहला बेटा उसका मनश्शे था। Manasseh means forget. मनश्शे के मतलब भूल जाएं। God will be ready to bless you when you forget your past. परमेश्वर तैयार है आशीष देने के लिए जब आप अपने अतीत को भूलने के लिए तैयार हो। And you will be willing to move into the unknown. जब आप तैयार हो जाते हैं अनजान की ओर आगे बढ़ने के लिए। And then Joseph had a second son. और यूसुफ का दूसरा बेटा है। He named him Ephraim. जिसका नाम उसने एप्रेम रखा। Because the meaning of Ephraim, क्योंकि एप्रेम का मतलब, for God has made me fruitful in the land of my affliction. मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। In the very place where I was afflicted. जिस स्थान में मैं सताया गया था। In the very land where I suffered. जिस स्थान में मैं दुख उठाया हूं। In the very place where I was imprisoned. जिस स्थान में मुझे कैद खाने में डाल दिया गया था। In the very place where I was falsely accused. जिस स्थान में मेरे पर झूठी दोष लगाया गया था। In the very place where I had to go through so much humiliation. ऐसे स्थान में मुझे बहुत प्रकार की अपमानों को सहना पड़ा। God has chosen to make me fruitful. परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं फलवंत होने पाऊं। God has chosen to bless me. परमेश्वर ने चुना मुझे आशीष देने के लिए। So I named my son Ephraim. इसलिए मैं अपने बेटे का नाम एप्रेम रखता हूं।
In the midst of your humiliation, आपके उस अपमान के समय पर God is preparing a crown of glory for you. परमेश्वर आपके लिए महिमा का एक मुकुट तैयार कर रहे हैं। In the midst of suffering, आपके दुख उठाने के स्थानों में God is preparing a victory for you. परमेश्वर आपके लिए एक जीत तैयार कर रहे हैं। In the midst of your tribulation, आपके सताव के बीच में God is preparing a garment of overcomers for you. परमेश्वर आपके लिए एक जयवंत का वस्त्र तैयार कर रहे हैं। My dear Joshuas, मेरे प्रिय यहोशुए, God will make you fruitful. परमेश्वर आपको फलवंत बनाएंगे। Where? कहां? In the land of your affliction. आपके दुख भोगने वाले उस स्थानों में। So Jesus prayed, इसलिए यीशु ने प्रार्थना किया, if it be your will, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो, please remove this cup from me, दया करके इस प्यालों को मुझसे दूर करें, but not my will, मगर मेरी मर्जी नहीं प्रभु, but let your will be done. मगर आपकी इच्छा पूरा होने पाए। If I have to die, अगर मुझे मरना पड़े, if I have to go through this suffering, अगर मुझे इस दुख उठाने में जाना पड़े, so be it, ऐसा ही होने दीजिए, so be it. ऐसा ही होने दीजिए। I will take up the cross. मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। I will suffer humiliation. मैं अपमानों को सह लूंगा, I will suffer tribulation. सतावों को मैं सह लूंगा, I will suffer people's hatred and people's persecution. लोगों की भैर और उनके सताव को मैं सह लूंगा। I will endure the cross मैं क्रूस को उठाऊंगा प्रभु, because I want to walk in glory. क्योंकि मैं महिमा में चलना चाहता हूं। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, if you suffer with him, जब आप उसके साथ दुख उठाते हैं, you will be glorified with him. आप उसके साथ महिमा भी पाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when you walk with Jesus, जब आप यीशु के साथ साथ चलते हैं, you will suffer. आप दुख उठाएंगे। You know what happens when you suffer? आप जानते हैं जब दुख उठाते तो क्या होता है? You will be glorified like him. आप उसके समान महिमा भी पाएंगे। In the land of your affliction, आपके दुख उठाने वाले स्थान में God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। But this journey is not a known journey. मगर ये सफर एक जानने वाली सफर नहीं है। Since this is a journey not known by any person, जबकि ये सफर किसी व्यक्ति से जाना नहीं गया है, so no human beings can help you. इसीलिए कोई भी इंसान आपके लिए मदद नहीं कर सकते हैं। John chapter 6 योना 6 अध्याय is very interesting. बहुत ही दिलचस्प है। Jesus feeds the 5,000 यीशु 5,000 को खिलाते हैं। and people are so happy. लोग बहुत खुश हो जाते हैं। They want to make him king. वो चाहते हैं उन्हें राजा बनाएं। And then the next day they keep looking for him. अगले दिन उसे ढूंढने लग जाते हैं। And they meet him on the other side of the sea. समुद्र के दूसरी ओर उसे मुलाकात करते हैं। And all the people tell him, oh, where were you hiding, Jesus? सब कहने लग जाते हैं, यीशु आप कहां छुपे हुए थे? You know, we have been searching and we have been discussing in our groups. हम अपने जुनों में आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। We want to make you king. हम चाहते हैं आपको राजा बनाएं। We have even passed that in our committee. हम अपने समूह में भी उस विषय में बातचीत कर चुके हैं। Oh, we have decided that in our church. हमारे कलीसिया में हमने निर्णय ले चुके हैं। Because you are giving us grace. क्योंकि आपने हमें अनुग्रह दिया हुआ है। Good food is coming. अच्छा भोजन आ रहा है। Free bread. मुफ्त में रोटी, Free fishes. मुफ्त में मछलियां। Wow, what a better life than this. ओ कितना बेहतर जिंदगी है ये। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Yes. हाँ, That's why we want to make you king. इसलिए हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। Because of the goodies. क्योंकि जो अच्छा अच्छा चीज मिल रहा है, Because of the blessings. क्योंकि उन आशीषों की वजह से We want to make you king. हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। Because no evil will befall us. क्योंकि कोई बुराई हम पर नहीं आएगा। We don't have to die hungry. हमें भूखा मरने की जरूरत नहीं है। There will be surplus. बहुतायत से हमारे लिए भरा हुआ रहेगा। 12 baskets full.
12 ठोकरियां भरकर मिला, overflowing. उभरता हुआ। So we want you to be king. इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा राजा बन जाएं। And Jesus said, तब यीशु ने कहा, okay, you want to make me king? ठीक है, क्या आप मुझे राजा बनाना चाहते हो? Let's sit down and talk. हम बैठ के बात करेंगे। This bread that you had, जो रोटी आपको मिला है, it is perishable. ये तो नाश्वर है, But I can give you even greater bread, मगर इससे भी बड़ा रोटी मैं आपके लिए दे सकता हूं। more powerful than what you had yesterday. कल जो आपने खाया है उससे भी सामर्थी। And then the people are even more excited. अब लोग और उत्सुक हो चुके हैं। Wow, कितनी अद्भुत है। more powerful bread than what we had yesterday. कल जो हमने रोटी खाया था उससे भी और सामर्थी रोटी, More powerful than what Moses gave to the Israelites. बहुत सामर्थी जो मूसा ने इस्राएलियों के लिए दिया उससे बढ़कर। And Jesus said, यीशु ने कहा, what Moses gave was a temporary bread. मूसा ने जो दिया था वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, But the bread that comes from heaven, मगर जो रोटी स्वर्ग से आता है it is eternal bread. वो अनंत रोटी है। And people said, लोग कहने लग गए, oh yes, Jesus, give us that bread हाँ यीशु हमें वो रोटी दीजिए, so that we don't have to work anymore. इसलिए हमें आगे कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। Give us that bread, Jesus, यीशु हमें वो रोटी दीजिए, so we can take it to our home and never come back to taunt you again. कि हम अपने घर ले जाएं और फिर से आपको आके सताने की जरूरत ना पड़ जाए हमारे लिए। We will give it to our families. हम अपने परिवारों को बांटेंगे, Life will be so good. जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, truly, truly, I say unto you, तुमसे मैं सच सच कहता हूं, I am that bread. मैं ही वो रोटी हूं। Suddenly, the hopes of people were dashed. अचानक लोगों की आशा टूट चुका है। They thought that Jesus had gone mad. उन्होंने सोचा यीशु तो पगला गए हैं। The bread that you gave us yesterday, जो रोटी आपने कल दिया था हमें, Jesus, we want that bread. यीशु हमें वो रोटी की जरूरत है, That bread made of wheat. जो रोटी गेहूं से बनाया गया है, That bread made of barley, जो रोटी जौ से बनाया गया है, which we can touch and feel, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, which we make every day in our homes. जो हम हर रोज अपने घर में पकाते हैं। That bread we are talking about. उस रोटी के विषय में हम बात कर रहे हैं। Give us that bread, हमें वो रोटी खिलाइए, because we know that bread. क्योंकि हम उस रोटी को जानते हैं। We are used to that bread. हम उस रोटी की आदत हो चुकी हमारी। That is a known bread. वो हमारी पहचानी हुई रोटी है। We don't want unknown bread. हमें अनजान रोटी की जरूरत नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, I am that bread. मैं ही वो रोटी हूं। Whoever takes me जो कोई इसे लेता है will never go hungry. वो कभी भूखा नहीं रहेगा। People did not want to move. लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। They did not want to go from the known to the unknown. वे जानने में से अनजान में नहीं जाना चाह रहे थे। And the Bible says, और बाइबल बताता है, from that day on, उस दिन से लेकर many people left following Jesus. बहुत सारे लोग यीशु का अनुसरण करना छोड़ दिया। They left him उसे छोड़ दिए because they did not want to go to the unknown. क्योंकि वो अनजान में नहीं जाना चाहते हैं। And when Jesus saw so many people leaving him, जब यीशु ने देखा बहुत सारे लोग उससे छोड़कर जा रहे हैं, his number became very small. उसकी संख्या अभी घटता चला गया है। Just a remnant. सिर्फ जो बाकी बचे हुए लोग थे। That is what is going to happen in the end times. अंतिम दिनों में ऐसा ही होने वाला है। When the church will start doing hard preaching, जब कलीसिया कठिन प्रचार शुरू करेंगे, people will start leaving the church. लोग कलीसिया से निकलने लग जाएंगे। People will hate the preaching of true prophets. सच्ची भविष्यवक्ताओं की प्रचारों के लिए लोग घृणा करेंगे। People will start hating teachers who will say, let us move from the known to the unknown. उन शिक्षकों से लोग घृणा करेंगे जो सिखाते हैं जानने में से आए अनजान में आगे बढ़ने पाए।
They will be told that this is a false prophet. वो कहेंगे ये झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, This is a false teacher. ये झूठे शिक्षक लोग हैं, They are trying to take us to a place where we have never been before. क्योंकि वो ऐसे स्थान में ले जाना चाहते हैं जहां हमने कभी पहले गया ही नहीं है। We are happy with our surroundings. हम अपने सारे चीजों से घिरे हुए चीजों से खुश हैं। These are known things. ये सारे जाने वाली चीज हैं। These are things which we have been doing for ages. इन बातों को हम कई युगों से करते आ रहे हैं। They are part of our Christian tradition. ये हमारे मसीह रिवाज का भाग है। We don't want to break it at any cost. किसी भी कीमत में इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। We have been doing it in our churches. हम अपने कलीसिया में ऐसे ही करते आए हैं। So they are false teachers. वे झूठे शिक्षक लोग हैं, They are false prophets. वे झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, Because people don't want to move. क्योंकि लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। Many people left Jesus. बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर जाने लग गए। Jesus turned to his disciples यीशु अपने चेलों की ओर मुड़ा and he said, और कहा, Are you also going to leave me? क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? Because they have all gone. क्योंकि सब चले गए, Because I talked hard. क्योंकि मैंने उनसे कठिन बात बोली है। I talked about the unknown. अनजान के विषय में मैं उनसे बात किया हूं। And Peter said, तब पतरस ने कहा, Where do we go away from you, Lord? प्रभु हम आपसे कहां दूर जा सकते हैं? Because eternal things are with you. क्योंकि अनंत की बात तो आपके पास है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the age that God is calling his remnants. इन्हीं युगों में परमेश्वर के बचे हुए उन लोगों को बुला रहे हैं। These are tough times. ये बहुत ही कठिन समय है। Let's see about the life of Ruth and Orpah. रूत और औरफा की उस जीवन के बारे में आइए हम देखिए। They were following Naomi. वे नओमी का पीछा कर रहे थे। And both these women had been suffering the same fate. ये दोनों महिलाएं वही दुर्भाग्य का अनुभव करते आ रही हैं। Both their husbands are dead. दोनों के पति मर चुके हैं। They are widows. वे विधवा है। They are both Moabites. वो दोनों मोवाबी हैं। And then they are following this old woman called Naomi. अब ये वो बुजुर्ग महिला नओमी का पीछा कर रहे हैं। After following her for some distance, कुछ दूर उनके साथ चलने के बाद Naomi stops them नओमी उन्हें रोक देती हैं and she says, और कहने लग जाती, My dear daughters, मेरे प्रिय बेटियां, please don't follow me. मेरे पीछे मत आओ। I have nothing much to give you. मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। I'm old. मैं बुजुर्ग हो चुकी हूं। I don't know how many days I will live. मुझे पता नहीं कितना दिन मैं जीने वाली हूं। Even if I get married and give birth to a son, अगर मेरी विवाह होकर एक बेटे को मैं जन्म भी देने पाऊं, by the time they grow up, you will be very old. जब तक वो बड़े होगा तब तक तुम बुजुर्ग हो जाओगे। I have nothing much to give. मेरे पास बहुत कुछ नहीं है कुछ देने के लिए। Leave me. मुझे छोड़ दो। Orpah found the words of her mother-in-law very reasonable. और पाक लिए उसकी सासू की शब्द बहुत ही जो है मतलबदायक लगा। Those were wise words. वो बहुत ही बुद्धिमान शब्द था। Those were reasonable. वो बहुत ही उसे सही लगा। Any logical person could comprehend it. अच्छे होश वाले लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। That was the world's way of thinking. संसार की सोचने की तरीका यही है। And Orpah said, Yes, she is right. और पा कहने लगी, हाँ वो तो सही कह रही है। What is the use of following her? उसका पीछा करना क्या लाभ है? It's stupidity. ये तो मूर्खता है। No home, घर नहीं है, no family, परिवार नहीं है, no future, भविष्य नहीं है, no hope, आशा नहीं है, don't know where we lead, जानते नहीं कि कहाँ जाएंगे, what we'll eat, क्या खाएंगे, where we sleep, कहाँ सोएंगे, don't know how long she will live. हमें पता नहीं कितना लंबा दिन वो जीने पाएगी। It is not reasonable to follow her. ये कोई तत्व बात नहीं बनता उसका पीछे करना। She looked at Naomi and said, वो नयोमी को देख के कहने लग गई, You are right. तुम सही कह रही हो। There's nothing much following you. कुछ बड़ा लाभ नहीं है आपके पीछे आना।
I will go back. मैं वापस जाती हूँ। She hugged her mother-in-law, वो अपने सासू को गले लगाई, gave her wonderful kisses. एक अच्छा चुम्बन उनको दिया। Maybe she told her, हो सकता है ऐसे कह ही होगी, if you survive, अगर तू जिंदा रहेगी, and maybe later if you want to visit me, अगर बाद में कभी आप मुझसे मुलाकात करना चाहते होंगे, you know where to find me. तुम जानती हो मुझे कहाँ पाना है। If I get time, अगर मुझे समय मिलेगा, I will come and meet you someday. कभी ना कभी आके मैं आपसे मुलाकात करूंगी। Yeah, someday. कभी ना कभी आके, Maybe a Christmas, हो सकता है क्रिसमस के दिन, maybe an Easter, हो सकता है ईस्टर के दिन, or some special church functions. या ना तो कलीसिया की खास उस त्योहारों में I will come and meet you. मैं आके आपसे मुलाकात करूंगा। But today, मगर आज I have my life to live. मेरा अपनी जिंदगी है जीने के लिए। Bye bye. आपसे विदा लेता हूँ। She went. वो चली गई Because she did not want to go to the unknown. क्योंकि वो अनजान उस स्थान में नहीं जाना चाहती हैं। There is Ruth. मगर यहाँ पे रूथ है, She is in the similar situation. वो भी वैसे ही परिस्थिति में है। She says, मगर वो कहती है, my dear mother, मेरे प्रिय माँ, I don't know what you're talking about. मैं नहीं जानती आप क्या विषय में बात कर रही हैं। I don't know where we go, हम नहीं जानते हम कहाँ जाएंगे, but I will follow you. मगर मैं आपके साथ साथ चलूंगी। Your people will be my people. आपके लोग मेरे लोग होंगे, Your home will be my home. आपका घर मेरा घर होगा, Your God will be my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। This is worship. और यही चीज आराधना है। I don't know what tomorrow may bring. कल मेरे लिए क्या ले आने वाला मुझे पता नहीं है, I have decided to follow Jesus मगर मैंने निर्णय ले लिया है यीशु का अनुसरण करने का, because I know क्योंकि मैं जानता हूं you have a plan. आपके पास योजना है, You have a purpose. आपके पास एक उद्देश्य है। That's what the Holy Spirit is telling me. इन्हीं बातों को पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं। There's a plan of God in your life. आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की एक योजना है, So move, इसलिए आगे बढ़ो, move, आगे बढ़ो, move आगे बढ़ो till you reach your promised land. अपने प्रतिज्ञा के स्थान पहुंचने तक। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I will continue to pray for you. मैं लगातार आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। Are you willing to move from the known to the unknown? क्या आप इच्छुक हैं जानने वाले स्थान में से अनजान में आगे बढ़ने के लिए? Till we meet again. अगले बार मिलते तक God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shalom. शांति हो। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।